Namaskar, good evening viewers. You are watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar. The 5-day special session of Parliament began on Monday. It has been called to remember and recall the achievements of India over the last 75 years. In this program, we will look at the highlights of the proceedings of Lok Sabha and Rajya Sabha on the first day of the special session. Let us first take a look at the headlines. Special session of Parliament begins. Prime Minister Narendra Modi asserts India will be a developed nation by 2047, says all necessary decisions in that regard will be taken in the new building of Parliament. Both houses of Parliament hold discussion on parliamentary journey of 75 years, starting from Samvidhan Sabha, achievements, experiences, memories and learnings. PM Modi pays tributes to old Parliament building, recounts history. Members cutting across party lines take part in the discussion. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar lauds Prime Minister Modi on successful conduct of G20 summit. Lok Sabha Speaker Om Birla says India emerged as voice of peace and restraint in the world during recent G20 summit in New Delhi. Starting with the proceedings in the Lok Sabha. This is a special session and as such, there was no question hour scheduled at the beginning of the proceedings in the Lok Sabha. The day began with the Speaker congratulating the Prime Minister, the government and the people of the country for the successful organization of G20 summit in the national capital. He also let the House know about the forthcoming P20 event. G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी है। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। भारत की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज को G20 की चर्चा के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के कारण अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अगले माह हमारी संसद को हमारे G20 अध्यक्षता के क्रम में पार्लियामेंट P20 फोरम की मेजबानी करने का सम्मान मिलेगा। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के प्रत्येक माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतंत्र की जननी भारत की भूमि पर पूरे विश्व का स्वागत करने और वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के मिशन को आगे बढ़ाने में शामिल हो। मुझे विश्वास है ये सभा इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सराहना करने, भारत के लोगों को उत्साह बढ़ाने और सभी संगठनों और व्यक्तियों के योगदान को सराहना करने में मेरा साथ देगी। The Speaker then spoke about it being the last day in Parliament's old structure. He first laid a brief history of all that it has witnessed over more than 7 decades of India's independence. He also hoped that new hopes and expectations will touch new heights in the new Parliament building. हमारा ये संसद भवन स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐतिहासिक घड़ी से लेकर भारत के संविधान निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया और इसके साथ ही हमारे आधुनिक राष्ट्र की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा है। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने 15 मई 1952 को अपना पदभार ग्रहण किया था। माननीय सदस्यगण, ये सदन संवाद संस्कृति का जीवंत प्रतीक रहा है। विभिन्न दलों के बीच सहमति असहमति के बीच पिछले 75 वर्षों में
देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए। संसदीय विचार विमर्श की पद्धति से देश की जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कानून बनाए गए। आपदा और संकट के समय सदन ने एकजुटता और प्रतिबद्धता से उसका सामना किया। आज इस कक्ष में कार्रवाई का अंतिम दिन है। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में इस भवन का योगदान अतुलनीय है। आज के बाद सदन की कार्रवाई नए भवन में संचालित होगी। हम नए भवन में नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के नए भवन में हमारा लोकतंत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। Prime Minister Narendra Modi on Monday addressed the Lok Sabha on the first day of the special session of Parliament. In his almost hour-long speech, the Prime Minister covered a wide range of subjects which included the successful landing of Chandrayaan-3 on the moon and the successful hosting of the 18th G20 summit. In his speech, every preceding Prime Minister to every commoner, the Prime Minister Modi thanked everyone who has been associated with the functioning of the Parliament and also in taking the nation forward in whichever way. We bring you some excerpts of Prime Minister Modi's speech in the Lok Sabha. हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है। चंद्रयान-3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उपयोग हम करने वाले हैं और आपकी अध्यक्षता में दुनिया भर के ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। भारत के लोकतंत्र की ताकत है
भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। दोनों सदन की 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है, हमारे संविधान दिया। और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ जी कोविंद और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इन सब के संबोधन का लाभ हमारे सदनों को मिला है। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सब का गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने के लिए, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। यह सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें 2 हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जो ये टोली बैठती है उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गई है। कभी कागज लेके दौड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागज पत्र पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं, सदन में कोई गलती न हो जाए, उसके निर्णय में कोई गलत ना हो जाए,
उसके लिए वो चौकन्ने रहते हैं। जो काम इनके द्वारा हुआ है उसने भी सदन के क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की है। मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्व में जो रहे हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। किसी ने माली ने इसके बाहर के एनवायरनमेंट को संभाला होगा, किसी ने इसकी सफाई की होगी, न जाने कितने ही अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके और यहां जो काम हो वो काम देश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तेजी से हो। उसके लिए जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिसने योगदान दिया है, मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं उनका विशेष रूप से नमन करता हूं। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हो, तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती, कान से सुनी होती, जो अचरज करने वाली। यानी एक प्रकार से जैसी ताकत यहां की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है। मैं आज कई पत्रकार बंधु होंगे जो रहे नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए जैसा ये सदन छोड़ना भावुक पल है, मैं पक्का मानता हूं इन पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये सदन छोड़ना उतना ही भावुक पल होगा, क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहे। Members cutting across party lines took part in the discussion on parliamentary journey of 75 years from Samvidhan Sabha, achievements, experiences, memories and learnings. Let us listen in. इस सदन में सर 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पारित हुई थी टू एंश्योर दैट पीपल आर गिवन द राइट टू वोट। अगर वोट देने के अधिकार ना होते तो आज बाकी बात करने की हमें गुंजाइश ना मिलते। सर दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, a law that has helped the government regulate the production, supply and distribution of essential commodities such as drugs, oil, kerosene, coal, iron, steel, pulses. सर तीसरा क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1967। 4 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, 14 banks were nationalized which enhanced banking infrastructure and services and created provision of cheaper credit to farmers. Adjourning the House one last time from the old Parliament building, the Speaker again hoped that the new Parliament building to take the debates and discussions to a higher level. मेरा भी इस भवन से बहुत लगाव रहा है। 4 साल 3 महीने आपने सबने सदन में मुझे सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करेंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मेरा अनुभव रहा है कि सदन में जिस तरीके से कई गंभीर मुद्दों पर पूरे सदन ने एक मत होकर देश और राष्ट्र के हित में निर्णय लिए हैं, उससे भी बेहतर नए भवन में एक मत से सामूहिकता से निर्णय लेंगे ताकि भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा विश्व में और बढ़े। आज भी भारत के लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में है। मुझे आशा है नया भवन आपके लिए नई ऊर्जा के साथ इन संकल्पों को पूरा करेगा। आप सभी को जो चर्चा की उसके लिए मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों,
सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:15 पर नई संसद भवन के लोकसभा के सदन में प्रारंभ होगी। सभा की कार्रवाई आज स्थगित की जाती है। Time for a very short break here in the bulletin. News from the upper house on the other side. खेती तो सभी करते हैं, मगर हर किसान स्मार्ट नहीं होता। जो बन सकते हैं आपकी भी प्रेरणा, क्योंकि वो करते हैं स्मार्ट खेती। देखिए मेरे साथ सिर्फ संसद टीवी पर। Welcome back. Now, news from the Rajya Sabha. On the first day of the special session of Parliament on Monday, Chairman Jagdeep Dhankar highlighted the 75 years of parliamentary journey that have shaped the Indian democracy. Delivering the opening remarks at the commencement of the 261st session of Rajya Sabha today, he said that the special session makes available a befitting opportunity to reflect and introspect the parliamentary journey of 75 years. Honorable members, this session makes available a befitting opportunity to reflect and introspect on parliamentary journey of 75 years, starting from Sabha achievements, experiences, memories, and learnings. Traversing over 7-decade journey from Sabha to the present day in Namrata, these hallowed precincts have witnessed many milestones. Honorable members, this journey had historical moments, from tryst with destiny at midnight of 15th August 1947 to unfolding of innovative forward-looking GST regime at midnight of June 30, 2017, and now this day. Deliberations in the Constituent Assembly in various sessions spread over 3 years exemplified decorum and healthy debate. Contentious and highly divisive issues were negotiated in a spirit of consensus. There is enough takeaway from this for us all. Healthy debate is hallmark of our blossoming democracy. We must eschew confrontational posturing. Weaponizing disruption and disturbance as a strategy would never secure sanction of the people. We all are constitutionally ordained to nurture democratic values and must so justify and vindicate the trust of the people. We owe it to the nation to optimally utilize the opportunity and time to subserve public interest. Rajya Sabha on Monday took up the discussion on the parliamentary journey of 75 years, starting from the Samvidhan Sabha, achievements, experiences, memories and learnings. Initiating in the discussion, Union Minister and Leader of the House in Rajya Sabha, Piyush Goyal, said the dignity of the House will increase only when everyone keeps the interests of the country and public interest paramount. He listed out historic decisions taken by Parliament, like the removal of abrogation of 370, GST implementation and abolishing the practice of triple talaq. मैं समझता हूँ कोई भी इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि 9 वर्ष का समय एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव देश के बदलाव का समय रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी के नेतृत्व में, और हम सब ने एक प्रकार से उस प्रवाह में अपना अपना योगदान दिया, अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। और मैं सभी माननीय सदस्यों को इस बात की बधाई भी देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं हम सबकी इच्छा है कि
कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले टर्म में, अगले 4-5 वर्षों में अब देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2047 तक हम एक विकसित भारत के रूप में हमारे 100 वर्ष लोकतंत्र के मनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करने का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय इस सदन में लिया, सही माने में एक प्रकार से देश को जोड़ने के लिए, देश को एक बनाने के लिए, जिस देश में हमारी सबकी इच्छा थी कि एक संविधान रहे, एक ही कानून व्यवस्था रहे, कानून व्यवस्था सभी के लिए सामान्य रहे और जो लाभ देश के अन्य इलाकों में लोगों को मिलते हैं वो हमारे कश्मीर के भाई बहनों को भी मिले, उसके लिए एक बहुत अहम कदम इस सदन से शुरू हुआ था और फिर यहां से लोकसभा में गया। 5 अगस्त 2019 का वो दिन इस सदन के लिए एक बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक दिन सदैव रहेगा। Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, said Indian constitution is the country's biggest guide as its constitutional values have been earned after much sacrifice and difficulty. Members cutting across party lines participated in the discussion. जो संविधान आज़ादी के बाद बनी और इस संविधान के तहत हम सभी को चलना है और देश के लिए हम कुछ करना है। संविधान सभा ने चुने गए विभिन्न धाराओं के लोग महान नायक थे, उसमें अपने दौर के महारथी थे, उनका बड़ा जमीनी अनुभव भी था। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और लोकतंत्र उनकी नसों में समाया था, क्योंकि उसके लिए ही तो वो लड़ रहे थे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान दी है वही हमें आज भी एक बनाए हुए हैं और उसी ने राष्ट्र के लिए सशक्त ढांचा तैयार किया है। The upper house on Monday hailed the G20 presidency of India. Chairman Dhankar said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, it has been a historic G20 presidency. It gives me immense pleasure to congratulate the entire nation at the successful conduct of G20 New Delhi summit that has filled the heart of every Indian with pride and raised the leadership stature of the country at global level. I laud the Prime Minister's vision that made it truly people's G20. More than 200 meetings in 60 cities covering all the states and union territories of India is unprecedented. At the same time, the G20 New Delhi Leaders Summit with 42 delegations was one of the largest in size, scale, and scope. This has provided opportunity to the world to experience richness of diversity, democracy, and talent of India. India's G20 presidency has proven to be inclusive, ambitious, action-oriented, decisive, and people-centric. The outcomes of the G20 Leaders Summit are transformational and would contribute to the reshaping of the global world order in the decades ahead. Prime Minister's vision and guidance, the New Delhi G20 Leaders Declaration was adopted unanimously and with consensus, including on difficult issues. Honorable members, next month,
our Parliament would have the honor to host the Parliament 20 Forum as part of our G20 presidency. I request each member of this august House to participate in welcoming the world to the mother of democracy and building on the theme Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. I am confident that this august House will join me in commending Prime Minister's leadership in recognizing the enthusiasm of the people of India and appreciating the contribution of all organizations and individuals on this historic achievement. BJP leader and former Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Dinesh Sharma, on Monday took oath as a member of Rajya Sabha. Dr. Sharma was elected on the Rajya Sabha seat, which felt vacant in June after the demise of BJP MP Hardwar Dubey. Dr. Sharma's term will expire in November 2026. With this, we have come to the end of House Highlights for today. Keep watching Sansad Television. Good night.